Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we are going to start the final chapter of BS Material Science 1 for 8th semester. And this final chapter, which is chapter 5 of your syllabus, is mechanical properties of matter. Mechanical properties of matter. Matter has different properties which we are going to describe shortly, but in this chapter we will specially study mechanical and technological or engineering properties of matter. The mechanical properties of matter mainly include strength of material, ductility of the material, toughness of material, hardness of material, elasticity, plasticity, and many more. A material in general is characterized by the following properties. So, whenever you are choosing the materials, it is being chosen on the basis of some properties. Some material are chosen from their physical properties, some technological properties, some by electrical properties, some by magnetic properties, and some by thermal properties. So, these are the different properties of the material on the basis of which their cost and category is being specified. So, first is the physical properties. Physical properties of a material include shape, size, color, luster, specific gravity, porosity, structure, finish, and many more. Physical properties में shape of the material, size of the material, color of the material, luster, shine, specific gravity, porosity, structure, ऑर्थोगोनल है, रोम्बोहेड्रल है, कौन सा है, फिनिश की फिनिशिंग किस तरह है, एंड मैनी मोर. ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, स्मूथ है, हार्ड है, रफ है, ये तमाम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं. सेकेंडली वी कम टू टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और you can say engineered properties. These properties of matter mainly are its mechanical properties, including plasticity, machinability, weldability, formability, workability. इन जो प्रॉपर्टीज़ है इनमें आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें आपके पास प्लास्टिसिटी है कि मटेरियल पे ज़्यादा स्ट्रेस लगाओ तो वो डिफॉर्म हो जाता है और अपनी असल हालत में नहीं आ जाती है. मशीनेबिलिटी यानी मशीन का पार्ट अगर आप बना लेते हैं कि उसमें किस तरह वेल्डेबिलिटी, जब दूसरे वेल्ड किया जाता है तो उसकी वेल्डिंग की स्टेटस क्या है, वेल्डिंग जो है ड्यूरेबल है नहीं है, फार्मेबिलिटी बनावट में, वर्केबिलिटी काम में, और कास्टेबिलिटी एंड अलाट. ये जो है आपके टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं. थर्ड इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़. थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity, thermal conductivity, thermal expansion, latent heat of vaporization, latent heat of fusion, thermal stresses, thermal shock, and many more. तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ में आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है जो आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी होगी. थर्मल कंडक्टिविटी की हीट किस तरह कंडक्ट करता है, थर्मल एक्सपेंशन की हीट से मेटर किस तरह जो है वो एक्सपेंड करता है, लेटेंट हीट जो होता है, थर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, थर्मल शॉक्स, ये डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट होते हैं और काम के लिहाज से उसको क्या किया जाता है, चूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इन जनरल आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, relative capacity, dielectric strength, piezoelectricity, and much more.
Next is the chemical properties of matter. These properties include atomic weight, equivalent weight, molecular weight, atomic number, acidity, alkalinity, chemical composition, corrosion and a lot. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली जो है आपके पास क्या है, ये चीज़ें आ रही हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें आपके पास जो है क्या आता है, एटॉमिक वेट आता है, इक्विवेलेंट वेट आता है, मॉलिक्यूलर वेट आता है. एटॉमिक के बाज़ मटेरियल एसिडिक हैं, बाज़ जो है अल्कलाइन हैं, बाज़ जो है में कोरोजन होती है और बाज़ में नहीं होती. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप केमिकल रिएक्शन से वो आती है. नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. मीनिंग सम materials are paramagnetic, some are ferromagnetic and some are diamagnetic. So on the basis of that properties the material can be discriminated from each other. Every material has its own importance. Paramagnetic has its own importance and it can be utilized on certain occasions. Ferromagnetism has its own importance, it is used mostly in our daily life. And diamagnetic properties has its own role. Any diamagnetic material has its own role in our day-to-day life. So on the basis of these, the selection and cost of the material is linked to these properties of matter. इन तमाम चीज़ों को मैग्नेटिक, थर्मल और ये इन चीज़ों की बुनियाद पर मटेरियल को कैटेगराइज किया जा सकता है और उसकी कास्ट का जो है उसके साथ लिंक्ड हैं और उसकी सिलेक्शन के किस चीज़ में इसको इस्तेमाल करना बेहतर है, किस में इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है, इनके लिए ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इसको मटेरियल को क्या करती हैं, डिस्क्रिमिनेट करती हैं. बाज़ चीज़ें गुड फेरोमैग्नेटिक होती हैं तो उसकी कास्ट ज़्यादा होती हैं, बाज़ जो होती हैं अच्छी नहीं होती तो उसकी कास्ट कम होती हैं. बाज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं तो उसकी कास्ट ज़्यादा होती है, जिस तरह कापर हैं, जबकि आयरन की कंडक्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी कास्ट जो है आयरन की कापर की निस्बत क्या होती है, कम होती है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के बुनियाद पे मटेरियल की कास्टिंग होती है कि कितना कास्ट आता है, उसका ख़र्च यानी इसकी कीमत कितनी है, कीमतों का तयन होता है. इसके अलावा कहाँ कहाँ पर ऐसे मटेरियल को यूज़ किया जाता है, कहीं पे सुपर कंडक्टर को इस्तेमाल किया जाता है एमआरआई वगैरह में, तो हर जगह पे उसका इस्तेमाल होता है. तो डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में हमने उसको अप्लाई करना है. इन दिस चैप्टर वी विल मेनली स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. इसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. Before we go to the properties, we would like to clarify some terminologies and definitions. इन प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले हम जो है कुछ डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह को हम क्या करते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं. फिर उसका रोल देखते हैं कि इनका रोल क्या है, यानी मटेरियल्स में इनका रोल क्या है और मटेरियल्स के चूज़ करने में ये क्या किरदार अदा करते हैं. सबसे पहले आते हैं हम स्ट्रेस की तरफ. स्ट्रेस द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड स्ट्रेस. अप्लाइड फोर्स पर यूनिट, चूँकि हम सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वी हैव बीन स्पेसिफाइड इट. द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड स्ट्रेस, जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा. Suppose if is the magnitude of force applied on a unit area A of solid, then stress is equal to force per unit area, force per unit F by A. SI unit is Newton per meter square or kg meter inverse second power minus 2. The dimensions of stress are m L power minus 1 T power minus 2, T power minus 2. So that is about the स्ट्रेस के स्ट्रेस क्या है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया है जो कि मटेरियल पे अप्लाई होता है. नाउ कम टू टाइप ऑफ स्ट्रेस. टाइप ऑफ स्ट्रेस, वन इज टेंसाइल और लीनियर स्ट्रेस.
the perpendicular force on unit area that produces a change in length of a solid of negligible area of cross section is called tensile stress, represented by sigma t. For example, this is a wire and the area is negligible. I apply a force perpendicular to the area of cross section, and that is being elongated. Then it is called tensile stress, meaning that the stress that bring about a change in length of solid material is called tensile stress. One is compressive stress, which decreases the length of the material if the force is applied such that the material length is being decreased. That is called compressive stress. So sigma t is equal to F perpendicular divided by A is tensile stress. Second is shear stress. Shear stress is the force per unit area parallel to the surface that produces angular deformation in solid. That produces angular deformation in solid. Like this, I pivot like that. I apply a force parallel to the surface and this finger is being rotated. That is what we call shear. That is what we call shear stress. जब भी आप फोर्स को पैरेलल टू द सरफेस लगा लेते हैं और सरफेस जो है थोड़ा सा मूव कर जाता है, यानी पहले इधर था अब यू कर जाता है, तो इधर से लेके ये देखो ये एंगल बन गई है, तो एंगुलर डिफॉर्मेशन ले आता है, यानी स्ट्रेसिंग, यानी ये जो कि ट्विस्टिंग होती है, उसकी क्या होती है, ट्विस्टिंग होती है, वो स्ट्रेस जो कि ट्विस्ट प्रोड्यूस करता है किसी मटीरियल में, उसको हम क्या कहते हैं, shear stress कहते हैं. Third is the bulk stress. Bulk stress is the perpendicular force per unit area that produces a change in volume of the solid. वो स्ट्रेस जो कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड में क्या करती हैं, चेंज पैदा करती हैं. आप एक क्यूब पे हर डायरेक्शन से फोर्स लगा दे परपेंडिकुलर तो वो स्क्वीज़ हो जाएगा, और इसको हम फिर क्या कहते हैं, बल्क स्ट्रेस कहते हैं. और डेल्टा पी सिग्मा बी इज इक्वल टू एफ बाई ए है, एफ बाई ए है. दैट इज व्हाट वी कॉल बल्क स्ट्रेस. ऑल द थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर शोन इन फिगर बिलो. You see, when you apply a force, this is a thin wire, area of cross section is negligible, forces are applied in opposite direction, so this will produce a tensile, this is a tensile stress. For this is unit area, you see that this is a unit area of cross section and force is applied over here, but that area of cross section is negligible. Similarly, if I apply forces inward, then it becomes a compressive stress, it becomes a compressive stress. सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है shear stress में देखो ये force parallel to the surface, ये एरिया है, ये देखो कर्सर को देख रहे हो, ये F है, पैरेलल लगा दिया तो पहले ये जो डार्क लाइन थे पहले उसका पोजीशन ये था, अब ये जो है H या डैश्ड लाइन है, अब ये इस पे U आ गया, तो देखो ये एंगुलर चेंज आ गई, उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन आ गई. तो इस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, shear stress कहते हैं. क्या कहते हैं, shear stress. जबकि इधर देखो इस वाले में, थर्ड वाले में देखो बल्क स्ट्रेस को हर डायरेक्शन से जो रेड वो है फोर्सेस अप्लाई हैं. इब्तदाई वॉल्यूम जो था वो क्या है, ये जो लाइंस हैं जो कि डैश्ड नहीं है, ये इब्तदाई वॉल्यूम था. जब हर डायरेक्शन से फोर्स लगा लिया गया तो ये देखो ये वॉल्यूम छोटा हो गया, ये डैश्ड वाला पोर्शन बन गया. तो ये देखो वॉल्यूम वी नाट से, पहले वी नाट था सारा वॉल्यूम, अब वी नाट से माइनस डेल्टा वी हो गया. तो डेल्टा वी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम आ गया बिकॉज ऑफ द फोर्स, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, स्क्वीज्ड हो गया. क्या हो गया, स्क्वीज्ड हो गया. तो इसको हम क्या कहते हैं, बल्क स्ट्रेस कहते हैं. नाउ द थिंग दैट इज़ रिलेवेंट टू ऑल दीज stresses is called strain, meaning that all these type of stresses produces a strain. What a strain is? The ratio of change in dimension of solid to original dimension. The ratio of change in dimension of solid to original dimension. So strain is equal to change in dimensions to original dimensions.
Strain is the ratio of two similar quantities, so it has no unit and no dimension. So it is dimensionless quantity. It is dimensionless quantity. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स की तरफ. टाइप ऑफ स्ट्रेन के टाइप्स क्या हैं? एक है टेंसाइल स्ट्रेन. व्हाट अ टेंसाइल स्ट्रेन इज the ratio of change in length of solid to original length of solid is called tensile or linear strain. यानी जो लेंथ में चेंज आ जाता है उसको अगर ओरिजिनल लेंथ में डिवाइड किया जाए तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, या हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ सॉलिड ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन. चूंकि चेंज इन लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम होता है तो टेंसाइल स्ट्रेन जो होता है वो बराबर होता है फ्रैक्शन के बराबर आता है. क्या आता है? फ्रैक्शन. यानी डेल्टा एल छोटा होता है एल से, तो जवाब क्या आएगा? इशारिया में आएगा. इसलिए हमने फ्रैक्शनल चेंज है जो आता है किस चीज़ की वजह से? टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से होता है. द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ सॉलिड ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन. दूसरा क्या है? शीयर स्ट्रेन है. शीयर स्ट्रेन क्या है? द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ शीयर्ड फेस टू द फिक्स्ड फेस इज कॉल्ड शीयर स्ट्रेन. ये देखो, फ़र्ज़ करें ये टेबल है, ये इसका ये क्या है? ये फिक्स्ड पोजीशन है, ये पाँव उसके फिक्स हैं. मैं इस टेबल पे फोर्स लगाता हूँ तो ये देखो यूँ चला जाता है. तो फिक्स्ड वाला ये था, अब डिस्प्लेस्ड ये हो गया. कितना डिस्प्ले? ये डिस्प्लेस हो गया. तो ये डिस्प्लेस्ड y है और ये वाला फिक्स उसका x है सपोज़. तो ये थीटा है. बेसिकली ये टेंजेंट थीटा है. टेंजेंट थीटा y डिवाइडेड बाई x आ जाएगा. y डिवाइडेड बाई x. अगेन देखो, पहले पोजीशन ये था. अब जब आपने फोर्स लगा दिया पैरेलल, क्या लगा दिया? पैरेलल टू द सरफेस लगा दिया और उसकी वजह से चेंज आ गया. ये देखो, ये आ गया. क्या आ गया? ये. तो आपके पास क्या है? ये आ जाता है. ये कितना? ये फेस डिस्प्लेस हो गया और उसका जो ओरिजिनल वो है हाइट है उस पे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उसको हम शीयर स्ट्रेन कहते हैं. सो द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय शीयर स्ट्रेस इज कॉल्ड शीयर स्ट्रेन. सो एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ शीयर्ड फेस टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड फेस. शीयर्ड फेस डिवाइड बाय फिक्स्ड फेस. या आप इसको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, यानी इसको इस तरह लिख सकते हो कि y डिवाइडेड बाई x. y जो है, जो शीयर्ड फेस जितना मुंह कर गया है वो है, और x जो है वो इब्तिदाई वाला फिक्स्ड फेस है. फिक्स्ड फेस है. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल शीयर स्ट्रेन कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? शीयर स्ट्रेन कहते हैं. The ratio of displacement of sheared face to fixed face is called y is the displacement the displacement through which sheared face is moved, and x is the fixed portion, yeah, fixed part, initial fixed part, height of the table or anything else which is being distorted. So bulk strain. Now come to bulk strain. The ratio of the change in volume of solid and its original volume is called bulk strain. Change in volume divided by actual volume is called bulk strain, or the fractional change in volume of solid due to bulk stress is called bulk strain. फ्रैक्शन इसको कहते हैं कि डेल्टा वी कम होता है v से, इब्तिदाई वॉल्यूम से, तो जवाब इशारिया में आता है. तो बल्क स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज माइनस डेल्टा वी बाई वी. नेगेटिव इसलिए आता है कि जब आप फोर्स लगा लेते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? स्ट्रेस के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता है. फोर्स पर यूनिट एरिया के साथ वो क्या होता है? द नेगेटिव साइन शोज दैट वॉल्यूम डिक्रीजेज विद द अप्लाइड स्ट्रेस. तो ये आपके पास क्या हो गए? 3 टाइप के स्ट्रेन्स हो गए. क्या हो गए? 3 टाइप के स्ट्रेन्स हो गए. और ये याद रखना कि स्ट्रेन और स्ट्रेस का रिलेशन डायरेक्ट है. दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर अप टू सर्टेन लिमिट. यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू सर्टेन लिमिट. दिस scenario is being described by Hooke's law
of elasticity of solids. What is the statement of the Hooke's law? Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. द अप्लाइड जो स्ट्रेस आप लगाते हैं वो स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिसिटी की लिमिट क्रॉस ना हो। इलास्टिसिटी क्या होती है? अगर आप किसी बॉडी को डिफॉर्म कर दे और फोर्स हटा दे और वो बॉडी दोबारा अपनी असल हालत बहाल कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन, सपोज अ स्ट्रेस सिग्मा प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेन epsilon in solids, then according to the above statement, stress is a direct function of strain. Stress is equal to constant multiplied by strain. The constant is called modulus of elasticity, generally denoted by E. So, constant is equal to modulus of elasticity is equal to stress divided by strain. सो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। एस आई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सिमिलर टू स्ट्रेस, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और केजी मीटर इनवर्स सेकंड पावर -2। डायमेंशंस आर आल्सो सिमिलर टू स्ट्रेस, ml power -1 t power -2। so this is what we call Hooke's law of elasticity for solids. So now come to types of modulus of elasticity. Types of modulus of elasticity. One is Young modulus of elasticity. Young modulus of elasticity is the ratio of tensile stress to tensile strain. The ratio of tensile stress to tensile strain is called Young modulus of elasticity. So Young modulus of elasticity, tensile stress by tensile strain, Ry is equal to F by A or delta L by L, F cross L divided by A cross delta L. That is what we call Young modulus of elasticity. इनसे ये पता चलता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया से ये मटेरियल कितना एलांगेट होता है, कितना फैलता है। ठीक है, जिस तरह के पॉलीमर्स को आप सेम फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करें और आयरन को अप्लाई करें तो पॉलीमर में ज़्यादा एलंगेशन आएगी कंपेयर टू आयरन। तो ये तयन करता है, यंग मॉडुलस की वैल्यू जो होती है वो तयन करता है कि इस मटीरियल की एलंगेशन ज़्यादा है या एलंगेशन कम होती है। सो कम सेकंड, shear modulus of elasticity. shear modulus of elasticity. तो shear modulus of elasticity जो है आपके पास क्या है? shear modulus, the ratio of the shear stress to shear strain is shear modulus of elasticity. shear modulus of elasticity is equal to shear stress divided by shear strain. तो S is equal to F by A del theta by या F by A y by x, जिससे हमने पहले एक्सप्लेन किया है, और ये आ जाएगा F क्रॉस थीटा A del थीटा या F multiplied by x A multiplied by y is the displacement of the sheared face and x is the length of the flexed face. ये है आपके पास shear modulus से पता चलता है कि कितना आप एक मटेरियल को ट्विस्ट करते, बास को ट्विस्ट करें तो वो जल्दी टूट जाता है और बास को ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करें तो वो नहीं टूटता है। तो shear modulus जो है इसकी वैल्यू जो है आपको ये बताती हैं कि दिस मटेरियल जो है, ये मटेरियल जो है ये ट्विस्टेबल है कि नहीं है। और नेक्स्ट जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। बल्क मॉडुलस इसको ई बी या बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? द रेशो ऑफ बल्क स्ट्रेस टू बल्क स्ट्रेन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास क्या है? यानी बल्क
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपके पास आ रहा है वो है बल्क स्ट्रेस डिवाइडेड बाय बल्क स्ट्रेन, और y इज़ इक्वल टू एफ बाई ए और माइनस डेल्टा वी बाई वी, तो ये आ जाएगा माइनस एफ क्रॉस वी ए क्रॉस डेल्टा वी। चूँकि फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करने से वॉल्यूम कम होता है, तो जनरली बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, यानी नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज़ पॉजिटिव। ये क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। अब जो है और जो टर्म्स जो है टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं इस्तेमाल होते हैं, इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे, यानी मटीरियल की कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं जिसको हम मज़ीद जो है वो डिस्क्राइब करें, और वो खूबियों में आइसोट्रॉपी ऑफ मटीरियल हैं। आइसोट्रॉपी ऑफ मटीरियल, आइसोट्रॉपिक मटीरियल वो होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में एक जैसी होती हैं। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी देके स्ट्रेस जिस डायरेक्शन से भी अप्लाई करें तो उसके डायमेंशन में जो चेंज आता है वो इक्वल आता है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन से भी अप्लाई करें तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इसी तरह थर्मल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह, यह सारी क्या होती हैं, एक जैसी होती है, तो उसको हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। सो a body is said to be isotropic if its physical properties like strength, ductilities and many more, ये तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसको आप कहते हैं, और ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस होती है। मैंने क्या कहा, इंडिपेंडेंट, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, हर डायरेक्शन में एक जैसी होती हैं। आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, अगर हर डायरेक्शन में एक जैसी हो तो उसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज प्रॉपर्टीज़। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं बिकॉज दे पोजेसेस सेम प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शंस। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल की ये होती हैं कि वो आइसोट्रॉपिक होती है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये हर डायरेक्शन में एक जैसी होती हैं। दूसरा क्या होता है, एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी का मतलब है द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल इन डिफरेंट डायरेक्शन इज़ एन आइसोट्रॉपी ऑफ द मटेरियल। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक डायरेक्शन से अप्लाई किया जाए तो एक रिज़ल्ट आता है, दूसरी डायरेक्शन से तो दूसरा रिज़ल्ट आता है, ये आपके पास क्या है, एन आइसोट्रॉपी कहलाता है, और ये यूजुअली सिंगल क्रिस्टल वगैरह में होता है। फॉर इंस्टेंस द रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टन सिंगल क्रिस्टल measured with electric field along a perpendicular crystallographic direction may be higher than along the direction parallel to it। पैरेलल, ये देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में अगर आप मेजर करते हैं उसकी निस्बत जो है पैरेलल में अगर आप वो कर लेते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में, तो वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। यानी वेन एवर यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू अ सिंगल क्रिस्टल रादर देन पैरेलल टू, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, पैरेलल में बहुत कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें डोमेन अलाइन होते हैं एक डायरेक्शन में। तो सिंगल क्रिस्टल्स जो होते हैं ये उसकी एग्जांपल है, द सिंगल क्रिस्टल्स आर एन आइसोट्रॉपिक विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी आल्सो। सो नुमेरस कंपोजिट मटेरियल जो है कंपोजिशन ऑफ पॉलीक्रिस्टल विद प्रेफर ओरिएंटेशन, वुड, लेमिनेटेड प्लास्टिक्स एंड मोर आर फ्यू एग्जांपल showing high N isotropy, showing high N isotropy, जो कि high N isotropy को क्या करता है, शो करता है। ये आपके पास क्या है, आपके पास किस चीज़ की वो आ गई है कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं। आइसोट्रॉपिक में जिस डायरेक्शन से भी आप फील्ड अप्लाई करें या स्ट्रेसेस या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में एक जैसा हो और डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो, तो वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल यूजुअली आइसोट्रॉपिक होते हैं, और एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो होते हैं जिसमें अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करें और उसका रिजल्ट भी डिफरेंट आए, तो वो क्या कहलाते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, और सिंगल क्रिस्टल जो है वो एन आइसोट्रॉपिक है। नाउ कम टू इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। What elasticity is? Elasticity is the property of a material
which enable it to regain its original shape and size are simply dimensions after being deformed within elastic limits. ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, अगर आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें और आप जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो वो दोबारा अपनी असल हालत में आती हैं, तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं और उस मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल कहते हैं. It is the property of material which enable it to regain its original shape and size after being deformed within elastic limit. अगर किसी बॉडी को डिफॉर्म किया जाए इलास्टिक लिमिट के अंदर, यानी टूटने से पहले, अगर उसको दोबारा छोड़ दिया जाए तो वापस अपनी हालत में आ जाएगा, तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं. However, in nature no material is perfectly elastic, यानी इसमें एटम्स या आयंस या मालिक्यूल ये ज़रूरी बात नहीं कि हर एक अपनी उस पोजीशन पे आ जाए जो पहले था डिफॉर्मेशन फोर्स हटाने के बाद. A certain limit exists for every material beyond which it will not be able to regain its original shape and size. This limit termed is elastic limit. इस लिमिट्स को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट कहते हैं. क्या कहते हैं? Material with high elastic limit are called is more elastic than the others. जिसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, और जो कम होती हैं तो उसकी इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी कम होती हैं. इलास्टिक लिमिट जिसका ज़्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है. इलास्टिक लिमिट जिसका कम होता है उसकी इलास्टिसिटी कम होती है. This property is always desirable in metals used in machine tools and other structural constituents. आजकल जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो उसमें अगर आपने इलास्टिक मीडियम लगाए हैं तो वो दोबारा अपने आप को रिगेन करने की सलाहियत रखता है. लेकिन अगर इलास्टिक ना हो, ब्रिटल वगैरह हो, तो ये फ़ौरन ग्राम से गिर जाएंगे. सो मेटल्स में ये क्या हैं? ये डिज़ायरेबल हैं ताकि ये जल्द टूटने ना पाएँ और उसकी इलास्टिक लिमिट क्या हो? ज़्यादा हो और ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर सके. स्टील एंड रबर आर एमंग द कॉमन एग्जांपल ऑफ मटेरियल्स हैविंग इलास्टिसिटी. स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि रबर पे फोर्स यूनिट एरिया जितना आप अप्लाई करोगे, अगर उतना आप स्टील पे अप्लाई करोगे तो स्टील में जो है वो क्या होगा? स्ट्रेन कम पैदा होगा. जबकि इलास्टिसिटी क्या है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. तो जब सेम स्ट्रेस हो और एक में ज़्यादा स्ट्रेन पैदा हो और एक में कम पैदा हो तो डिनोमिनेटर एक का ज़्यादा होगा एक का कम. जिसका कम होगा उससे आंसर ज़्यादा आएगा और जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उससे आंसर कम आएगा. सो स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर. Elasticity of solids has its origin in the existence and stability of interatomic intermolecular bondings. रबर्स वगैरह स्टील्स में ये जो है ये स्टेबिलिटी में रोल प्ले करता है कि जितना ज़्यादा इलास्टिक मीडियम होगा तो इंटर एटॉमिक और इंटर मालिकुलर बॉन्डिंग्स जो होती हैं और या बाइंडिंग्स जो होती हैं वो ज़्यादा होगी, स्टेबल होगी, जिस तरह रबर और स्टील में. अब हम आते हैं कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट हमने नीचे बना दिया है उसको हुक्स लॉ रीजन कौन सा होगा? द रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन विच देयर इज़ अ लीनियर रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज़ कॉल्ड हुक्स लॉ रीजन. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है नीचे हम दिखा देंगे आपको. जहाँ तक आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान लीनियर रिलेशन आती हैं, और ये चीज़ हम इसके लिए अपनी मशीन होता है, वो मशीन जो है स्ट्रेस अप्लाई करता है और उसके अगेंस्ट स्ट्रेन को रिकॉर्ड करता है. स्ट्रेस अप्लाई करता है और स्ट्रेन को रिकॉर्ड करता है. स्ट्रेस को इंक्रीज़ और स्ट्रेन को भी रिकॉर्ड करता जाता है और ग्राफ प्लाट करता जाता है. जब तक ये प्लाट क्या आता है? स्ट्रेट आता है, तो हुक्स लॉ वैलिड है.
और वो मैक्सिमम हद जहाँ तक ये वैलिड है वो हुक्स लॉ की लिमिट कहलाती है। क्या कह रही है? दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द हुक लॉ। सो द रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व in which there is a linear relation between stress and strain is called स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो लीनियर रिलेशन होगी तो उसको हम हुक्स लॉ रीजन कहेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट में। अब जनाब नीचे जो फिगर आएगा हम बयान करेंगे, उसमें ए जो है आपके पास क्या है, अप टू ए Hooke's law is valid. So OA is the validity region of Hooke's law. ये Hooke's law की validity region है। अब हम आते हैं yield point। ये जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो, हटाते हो, दोबारा रिकवर होता है, हटाते ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, एक ऑप्टिमम लिमिट आ जाता है और उस ऑप्टिमम लिमिट के बाद अगर आप स्ट्रेस को हटा दें तो वो दोबारा वापस अपनी असल डायमेंशन पे आ जाए, असल शेप पे आ जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट कहते हैं। आफ्टर यील्ड पॉइंट जो होता है वो रिकवरेबल नहीं होता, बॉडी जो है वो रिकवरेबल नहीं होती। तो यील्ड पॉइंट ये वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेस है व्हेन इट इज़ रिलीज्ड, व्हेन द स्ट्रेस इज़ रिलीज्ड एंड द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, तो उसको हम क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट कहते हैं। व्हेन द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड elastic limit, stress and strain are no more linearly related, but there is a point at which when stress is released the body regain its actual shape। यानी हुक्स लॉ की वैलिडिटी के बाद अगर हम स्ट्रेस को बढ़ा देंगे तो फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान लीनियर रिलेशन नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट तक अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो उसके बाद अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो दोबारा बॉडी अपनी असल हालत पे रीगेन करने, तो वो उसका क्या कहलाता है? यील्ड पॉइंट कहलाता है या इलास्टिक लिमिट कहलाता है। क्या कहलाता है? यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट कहते हैं। इन फिगर बी इज द यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट, यानी आफ्टर दैट इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल वो जो होती हैं वो असल लेवल से कम पड़ जाती है, ख़त्म, यानी आप कह सकते हैं कि इलास्टिक लिमिट्स जो हैं वो कम पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ख़त्म हो जाती है और डायमेंशन ओरिजिनल रीगेन नहीं कर सकता मुकम्मल तौर पर। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेस आफ्टर विच अ बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल shape is called yield strength. This is basically related to yield point. Yield strength is related to yield. Now next is plasticity of the material. Permanent deformation in solids without fracture even after stress is removed is called plasticity of the material. अब जब इलास्टिक लिमिट से हम आगे जाते हैं तो स्ट्रेस को इंक्रीज़ करते हैं तो बॉडी में परमानेंट चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और उस परमानेंट चेंजेस को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। टू सम एक्सटेंट ऑल मटेरियल्स आर प्लास्टिक। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज़ एक्सट्रीम अपोजिट, ये इलास्टिसिटी के अपोजिट है। इलास्टिसिटी मेरी गेनिंग की सलाहियत होती है और उसमें तोड़ने, जितना ज़्यादा तोड़ता है उतना ज़्यादा प्लास्टिसिटी होता है और जितना कम उसको मतलब डिफॉर्म किया जाता है उसमें प्लास्टिसिटी कम हो जाती है। So to some extent all material are plastic. The property of a material which is extreme opposite of elasticity is of importance in deciding manufacturing processes like forming, shaping, extruding, operations and many more यानी यही चीज़ें होती है प्लास्टिसिटी वगैरह, ये बताती है कि आप किसी चीज़ को शेप किस तरह कर सकते हैं, यानी इससे कुल्हाड़ा किस तरह बनाया जा सकता है, इससे चूरी किस तरह बनाई जा सकती हैं, ये आपको प्लास्टिसिटी से अंदाज़ा होता है। मेटल पोजेसेस मोर प्लास्टिसिटी एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये ज़्यादा प्लास्टिक होते हैं, उसको मुख्तलिफ शेप्स में बनाया जा सकता है। यूजुअली प्लास्टिसिटी ऑफ मटीरियल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग द फर्दर ऑपरेशंस। यानी मतलब है कि ये बहुत जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उसकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है और उसको हम मुख्तलिफ शेप्स में क्या कर सकते हैं? मोल्ड कर सकते हैं। So the plasticity of metals depends upon its nature and the environmental conditions.
सो प्लास्टिसिटी जो है नेचर ऑफ द मटेरियल और एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब देखो वेदर द मेटल इज़ शेप्ड रेड हॉट और इन कोल्ड, मेटल्स को आप कोल्ड में क्या कर सकते हो, यानी जब ये ठंडा हो तो उसको शेप करो, या रेड हार्ड हो तो उसको शेप करो। तो मटेरियल सच इज़ क्ले, लेड और प्लास्टिक एट रूम टेम्परेचर्स, यानी बाज़ चीज़ों को आप क्या कर सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे शेप कर सकते हो। बर्तन साजी वगैरह ये चीज़ें होती हैं, सरामिक्स वगैरह जो हैं ये आप क्या कर सकते हो, ये पहले रूम टेम्परेचर पे, बाद में उसको हीट देते हो, उसको क्या कर लेते हो और स्ट्रांग बना लेते हो, स्ट्रेंथ उसका बढ़ा लेते हो। सो क्ले वगैरह जो हैं ये सारे जो हैं आप क्या कर सकते हो, ये शेप कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे। स्टील इज़ प्लास्टिक एट ब्राइट रेड हार्ट एंड हैंस शेप्ड व्हेन हॉट। स्टील हो, आयरन हो, उसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसको कुल्हाड़ा बनाया जाता है, चूरी बनाई जाती है, वो बनाई जाती हैं। दिस प्रॉपर्टी फाइंड इट यूज़ इन फॉर्मिंग शेपिंग एंड एक्सट्रूडिंग ऑपरेशंस वगैरह, ये तमाम चीज़ जो है इसमें क्या करती हैं, मेटल्स को शेपिंग में इस्तेमाल होती है जब इसको हार्ड किया जाता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली आफ्टर इलास्टिक रेंज हैज़ बीन एक्सीडेड। इलास्टिक लिमिट के बाद जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाती है, विच वी हैव डिस्कस्ड। अ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ प्लास्टिक एक्शन वुड इन्वॉल्व द टाइम रेट ऑफ स्ट्रेन सिंस द प्लास्टिक्स स्टेट मटेरियल कैन डिफॉर्म अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस। ये क्या करता है, टाइम रेट ऑफ स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। अगर कांस्टेंट स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्ट्रेन क्या हो जाता है, आता जाता है, डेवलप होता जाता है। तो ये जो है ये कांस्टेंट स्ट्रेस लगाया जाए तो उसमें स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है। इट वुड आल्सो इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेक। लिमिट ऑफ डिफॉर्मेशन यानी ये कॉन्सेप्ट बताया था कि ये चीज़ कितनी डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद जो है वो टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि हमें इस लिमिट से आगे नहीं जाना है अगर उसको शेप करना है या उसको स्ट्रेस करना है। एविडेंसेस of plastic action in structure material are called yield, plastic flow and creep। अब देखो प्लास्टिक एक्शन जो स्ट्रक्चरल मटेरियल्स में हो उसको हम क्या कहते हैं, यील्ड, प्लास्टिक फ्लो कहते हैं, और इसको एंड क्रीप उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रीप। सम मटेरियल्स are shaped cold, for example the deep drawing of the sheets. Several materials, particularly metals, are shaped hot. For instance, the rolling structure steel shape and shaping of certain material parts। मटीरियल हो या मटीरियल पार्ट हो, बास को आप ठंडक में कर सकते हो, बास को आप गर्मी में कर सकते हो, यानी शेप कर सकते हो, जिस तरह क्ले हैं, लेड हैं, मैनी मोर आर मटीरियल विच कैन बी मोल्डेड एट रूम टेम्परेचर। तो वो रूम टेम्परेचर पे जबकि स्टील आयरन वगैरह जो है वो हार्ड होते हैं, तो तब उसको फिगर में जो होता है ये BC जो है ये प्लास्टिक रीजन कहलाता है। इसमें परमानेंट चेंज आ जाती है शेप में, दोबारा रीगेनिंग की सलाहियत नहीं होती बॉडी में। और ये क्या कहते हैं, इन दिस रीजन अ स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ लार्ज स्ट्रेन। यानी प्लास्टिक रीजन में अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेन लगा दें तो स्ट्रेस लगा दें तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पैदा होती है, यानी लीनियर रिलेशन नहीं होता। अब हम आते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की तरफ। अल्टीमेट the maximum level of stress after which the material is likely to break is called ultimate tensile stress। वो मैक्सिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस है जिसके बाद मटेरियल जो है टूटने को हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इसके बाद अगर हम फोर्स को बढ़ा लेते हैं, C जो है, अगर देखो फिगर में C जो है पॉइंट ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है। आफ्टर दिस स्ट्रेन इज़ नॉट ज़ीरो। इसके बाद स्ट्रेन ज़ीरो नहीं होता अगरचे स्ट्रेस ज़ीरो क्यों ना हो, यानी स्ट्रेस को अगर आप ख़त्म भी कर ले तो स्ट्रेन उसमें ऑलरेडी होता है। द पॉइंट D इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। पॉइंट D को हम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। अगर ये कर्व में CD वाला लाइन लॉन्ग है तो वो डक्टाइल मटेरियल होगा, अगर CD वाला लाइन छोटा है यानी फ्रैक्चर जल्द हो जाता है तो वो ब्रिटल मटेरियल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू आर गोइंग टू चूज़ एंड सेलेक्ट मटेरियल। अब देखो प्लाट में जो हमने ऊपर डिस्कस किए सारी चीज़ों को, ये देखो OA आपको लीनियर देता है, OA जो है लीनियर है, स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है,
वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेन है, और ये जो लाइन स्ट्रेट आती है ओ ए, यहाँ तक हुक्स लॉ की वैलिडिटी है। क्या है? हुक्स लॉ वैलिड है, और इसको इलास्टिक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, हुक्स लॉ वैलिड है, जबकि इलास्टिक रीजन थोड़ा सा उससे ऊपर भी है, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। ओ ए जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का लीनियर रिलेशन है, तो हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू हेयर। अब देखो, इसके बाद ये ए के बाद जो होता है, ये ए जो है लिमिट हुक्स लॉ का लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है जहाँ तक हो। इसके बाद अगर स्ट्रेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और बढ़ाते बढ़ाते बी पे आ जाए, अगर दोबारा रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी अपनी असल हालत में दोबारा वापस आ जाए, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट कहते हैं, और इसको मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी बी के बाद भी ये दोबारा अपनी असल शेप में आ सकता है, लेकिन ए से लेकर बी तक जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रिलेशन लीनियर नहीं है, हुक्स लॉ नहीं कहता। लेकिन बी जो है ये क्या कहलाता है? यील्ड पॉइंट कहलाता है या इलास्टिक लिमिट कहलाता है। एंड दिस रीजन इज़ कॉल्ड फ्रॉम ओ टू बी इज़ कॉल्ड इलास्टिक जोन। बी के बाद अगर हम फोर्स को, स्ट्रेस को बढ़ा दिया जाए, तो स्ट्रेस को बढ़ा दिया जाए तो परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द शेप आना शुरू हो जाती है। अगर स्ट्रेस को रिलीज़ भी कर दिया जाए तो वो अपनी असल हालत में नहीं आएगा। तो ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आती है उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिक। सो बी से लेकर आप सी तक प्लास्टिक, और ये सी से लेकर डी तक ये सारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये सारा क्या है? प्लास्टिक। इसके बाद ये बॉडी अपने आप को दोबारा रिकवर नहीं कर सकती, यानी नेकिंग हो जाती है। और ये मैक्सिमम लिमिट जो होता है उसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसके बाद बॉडी जो है फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है, इसमें वियर एंड टियर आना शुरू हो जाता है। अब ये जो आप स्ट्रेस को जब देखो, ये देखो स्ट्रेस अब कम होना शुरू हो गया है, लेकिन स्ट्रेन जो है वो बढ़ रहा है। स्ट्रेस कम लेकिन स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा कि इस प्लास्टिसिटी के बाद जो है थोड़ा सा स्ट्रेन थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। तो बी से लेकर डी तक ये सारा प्लास्टिक रीजन है, यानी बी सी डी ये सारा क्या है? यहाँ पर नेकिंग हो जाती है, और यहाँ पर जो है नेकिंग का मतलब है ये हो जाती है, और टूटने को बॉडी जो है वो करीब हो जाती हैं। सो सी इज़ कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके बाद फ्रैक्चर शुरू हो जाते हैं, और डी पर ये टूट जाता है, और उसको फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं या ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल ब्रेकिंग स्ट्रेस। सो ओ ए हुक्स लॉ वैलिड, AB Hooke's law is not valid, but still the body has the capability to regain its original. So B is called yield point or elastic limit. इसको yield point और elastic limit यहाँ पर मेरे ख्याल में गलती से इधर हो गया है, लेकिन B जो है बेसिकली और ये Hooke's law के लिए elastic limit जो है वो ओबेडियंट है A। ठीक, B से लेकर C तक, ये C से लेकर D तक ये सारा जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है, और परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं। ये जो आपने पढ़ा, ये आपने इसलिए पढ़ा कि यहाँ तक बॉडी जो है ये टूटेगी नहीं, वो नहीं होगी, दोबारा अपनी असल हालत में आएगी, इससे ये अंदाज़ा होगा। हुक्स लॉ की लिमिट आपको पता है, अगर ज़्यादा है तो बॉडी ज़्यादा इलास्टिक है, तो जहाँ पर आपको इलास्टिक चीज़ों में उसको इस्तेमाल करना है तो आप वो मटीरियल इस्तेमाल करें। ठीक है, और जहाँ तक आपने प्लास्टिसिटी, तो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट जाएं तो वो टूटता है, और इलास्टिक लिमिट अगर ज़्यादा है तो आसानी से नहीं टूटेगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आसानी से नहीं आएगी। इलास्टिक लिमिट कम है तो आसानी से उसमें डिफॉर्मेशन आएगी। यानी ये डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल को बनाना किस तरह, किसी को डक्टाइल बनाना है, किसी को शेपिंग करना है। जब शेपिंग करना हो तो वो मटेरियल क्या हो? डक्टाइल होना चाहिए, आसानी से टूटता ना हो। दोबारा जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर उसको करना चाहे ज़्यादा हद तक, यानी ज़्यादा लिमिट तक इलास्टिसिटी यानी रिगेन करने की सलाहियत भी रखता हो। और दूसरी बात, जब आप शेपिंग करते हो तो वो ज़्यादा जो है प्लास्टिसिटी उसमें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लास्टिक लिमिट होना चाहिए। सिंपल बात ये होती है कि आप मटेरियल का जो सिलेक्शन करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपको किस मकसद के लिए चाहिए, किस तरह चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी कभी मेरे अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू हीट, सो pardon for that. Keep on watching me.